the Vyas is 6738 kilometer. If you see the perimeter from east to west, it is known as equatorial perimeter. Equator है ना? So this perimeter is equatorial, and total area, total length is 40,075 kilometer. And if you see the perimeter from pole to pole, north to south, in pole to pole, it is 40,008 kilometer. ध्यान रखिए, everywhere in all general books wrongly written 40,000 kilometer. समझ में आ रही बात? सारी तुम्हारी जितनी किताबें पढ़ते हो सब में गलत लिखा हुआ है. Perimeter 40,000. This is wrong. You are not equal. 40 meter, right? अब see, इसमें क्या है? Everything no, 75% is water and 25% is land. This is. अब you see, there's how many continents? 7. First is Asia. Second is Africa, according to law. Third is North America. Fourth is South America. Fifth largest continent is Antarctica. Sixth is Europe, and seventh is Australia. Total population of Australia is 2.54 crores, and in India 3 crores people travel every day on train. Australia की total population है 2.54, somewhere it is 3 crore. In India 3 crore लोग per day train में travel करते हैं. That's why paper ticket has been banned. आपको मोबाइल पे आ जाता है. Why to waste paper? Waste का source of paper is wood. Why to cut the tree? So now you see Antarctica, India. India, you are getting India. North Pole, South Pole. This is Antarctica. हमको इंडिया से जाने के लिए यहाँ से इंडिया से जाते थे गोवा से. वाटर स्ट्रेच टू अंटार्कटिका. वाटर बाय शिप. It is 12,000 kilometer. 12,000 kilometer. Anyway, चलिए now start with next. First, this slide you see there, you can see there. इसमें क्या है? In each and every presentation I show this slide. हर presentation में इस slide को दिखाता हूँ. Unless you know this, you may not be able to understand many more things. First, universe, कायनात, ब्रह्मांड. यूनिवर्स लिखा है, इसको हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड, उर्दू में कायनात. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स ओरिजिनेटेड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो. कोई मैथमेटिक्स हुआ स्टडी? कौन आप लोग कौन सा मैथमेटिक्स स्टूडेंट है? आप 13.7 billion years ago. How many zero you put after 1? 10. It becomes billion. 10. छोटी छोटी चीजें तुम्हें जानना पड़ेगा. How many zero you put after 1? It becomes billion. 9. किसने बोला 9? Anyone? 9 को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब. ठीक है? कितना बोला उन्होंने? तो 10 to the power 9. अगर if we talk about million, it is 10 to the power 6. Right? So try to understand between million, billion and trillion. अभी billion के बाद trillion आ गया. तो universe originated 13.7 billion years ago, and after the sun 4.567 years ago. And next, origin of ocean is dated back to 4 billion years ago. Ocean, समुद्र. I'm not going in detail of formation of earth. आपने बचपन से पढ़ा होगा कि आपका बोला. हम आपको मोटा मोटा करेंगे. Ocean originated 4 billion years ago. Where? हमें स्लाइड में लिखा है where origin of life started, or where life originated 3.5 billion years ago. हमारा जो जीवन, हम लोग ऐसे नहीं थे. Life started 3.5 billion years ago.
in the form of genetic material. अभी आ रहा है genetic material by the combination of different carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. हमारी बॉडी किसकी बनी है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हटाने से क्या होता है? हम रोटी बन जाते हैं. रोटी जो खाते हो उसमें क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो पूरे जीवन पर रोटी, हमारे बॉडी रोटी हो जाती है. नाइट्रोजन लाइफ ओरिजिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक. वायरस क्या है? वायरस जेनेटिक मटेरियल है. इसीलिए तुमको वायरस जो कोई वायरस जेनेटिक मटेरियल है. आफ्टर जेनेटिक मटेरियल इवोल्यूशनरी प्रोसेस स्टार्टेड. विकास शुरू हो गया. विकास शुरू हो गया. तो फ्रॉम इवोल्यूशनरी थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस जेनेटिक मटेरियल कन्वर्टेड इनटू सेल, सेल इनटू टिश्यू, टिश्यू इनटू ऑर्गन, ऑर्गन इनटू ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम इनटू ऑर्गेनिज्म लाइक यानी प्लांट का रहना कुछ हो सकता है हम लोगों में. उसके बाद इकोसिस्टम. एनीवे आपको इतना बताना था कि कैसे हमारी लाइफ है, कैसे हम आ गए. नाउ अगेन यू सी, देख रहे हैं आप इसमें सारा आपने बता दिया. अरे नहीं, चलो कोई बात नहीं. आप देखिए उसमें यू आर लुकिंग द सेम ग्लोब देयर. कैन यू लोकेट इंडिया देयर? यू सो 0 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ एबव इक्वेटर. गेटिंग ऑल ऑफ यू? मिला ना? वहां से अंटार्कटिका है जस्ट बिलो. यू सी दिस इज अंटार्कटिका. नाउ अब इसको ऐसे देख लो. इसका अंटार्कटिका सब लोग देखो व्हाइट 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 दिख रहा है, व्हाइट टाइप का. दिस नॉट दिस इज सर्कुलर बट ईयर से उसमें एक पूछ जैसी चीज निकली है, उसे कहते हैं ये अंटार्कटिका ना, व्हाइट वाला अंटार्कटिका. आप 10 डिग्री अभी हम इसमें धीरे लगाते हैं तो इसकी हम एरिया नहीं बताना चाह रहे. हो गया. नाउ अंटार्कटिका इज अगेन ए ग्रीक वर्ड, नॉट इंग्लिश वर्ड. इंग्लिश वाली लड़की है ना, यादव क्या नाम है तुम्हारे पीछे तो पूरा लेक्चर. अंटार्कटिका इज ग्रीक वर्ड, मीन्स अपोजिट टू द आर्कटिक. आर्कटिक अपोजिट. जस्ट 130 ईयर्स बैक, अभी बहुत जल्द नहीं हुआ. अभी दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो 120 साल के जिंदा हैं. भारतवर्ष में शायद कोई महिला पुरुष 120 साल का भी हो गया है, जिंदा है. तो जस्ट 131 ईयर्स बैक स्कॉटिश कार्टोग्राफर जॉन जॉर्ज बार्थलोमेन नेम्ड इट एज ए कॉन्टिनेंट. इसका कॉन्टिनेंट का नाम 130 साल पहले ही दिया गया, इसलिए बहुत नया है. इसको छोड़ दे बाद में दूसरी स्लाइड में. नाउ अब आपने ऊपर से देखिए इसमें इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर से डाउन, नॉर्थ एंड साउथ. अब आप इसमें देखिए कि अंटार्कटिका की चारों तरफ ये सारी साउथ वाली सब 10 डिग्री 20 डिग्री उसमें दिया है. आप देखिए पहली लाइन जो है, पहला सर्कल क्या है? दैट इज अंटार्कटिक कन्वर्जेंस. नीचे देखिए वो लिखा हुआ है इसमें 70 डिग्री 60 डिग्री. बीच में वन डॉटेड लाइन इज देयर. डॉटेड लाइन दिख रही है? दैट इज अंटार्कटिक सर्कल 66.6 डिग्री. देन अगेन द सर्कल दैट इज लाइन दिख रही है? दैट इज अंटार्कटिक सर्कल दैट इज 60 डिग्री. फिर बाद में जीरो में बेस में सेंटर में फाइंड ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज सेंटर. उसका साउथ पोल उसको बोलते हैं साउथ पोल. वहां लिखा हुआ अमुंडसेन स्कॉट. इसको जरा चेक करो तो ठीक है, नहीं बने. अब यू सी लाइट बुझाइएगा. कभी कभी कुछ मैं कुछ गड़बड़ है. हाँ ये देखिए, हाँ आ गया. नहीं और सब मैंने कहा आपको इसको बाहर वाला निकाल दीजिए. छोड़िए अब जलाइए. ठीक है. अब देखिए ये जो है आप यहाँ देखिए, इसमें देखिए इक्वेटर से 10 ऊपर से 10 डिग्री 20 30 40 50 ये 50 देन 60 डिग्री. इसको बोलते थे अंटार्कटिक कन्वर्जेंस. और डॉटेड लाइन इज 66 डिग्री. दिस इज अंटार्कटिक सर्कल. देन
अगेन 70 डिग्री। यहाँ पे पॉइंट में क्या है, साउथ पोल, और दिस इज अंटार्कटिका। इसी अंटार्कटिका इस पियर की तरह नहीं दिख रहा, नाशपाती की तरह ऐसा है टेढ़ा मेढ़ा, ये दिस इज अंटार्कटिका। ये देखिए आपको रास सी समुद्र है, रास सी, और ऊपर से ये मिडल सी ये है। और यहाँ दोनों के बीचों बीच से फाइंड अ ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन। ट्रांस एंटार्क्टिक मीन अंटार्कटिका के आर पार, ट्रांस कहीं शब्द है तो इसका मतलब आर पार अंटार्कटिका का। और फर्दर यू से ये दिस इज ईस्ट अंटार्कटिका, दिस इज ईस्ट अंटार्कटिका। अच्छा क्या हो जाएगा, अब आप देखिए अप साइड, इसमें हमने फिर एक गोल दुनिया बना दिया है, एक गोल दुनिया और बना दिया है। ये देखिए, यह है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका का पूरा बड़ा फिगर, ठीक है। यहां पर देखिए ईस्ट अंटार्कटिका, ईस्ट, दिस इज वेस्ट अंटार्कटिका। इस साइड में वेस्ट अंटार्कटिका, दिस इज ईस्ट अंटार्कटिका, दिस इज वेस्ट अंटार्कटिका। ये 3-4 स्टेशन दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, पढ़े कोई? ये जॉर्ज फॉस्टर, दिस इज जर्मन, एंड दिस इज मैत्री इंडियन स्टेशन, एंड दिस इज दक्षिण गंगोत्री, एंड दिस इज नोवा लारा जास्कवा रशियन। तो यू सी द दक्षिण गंगोत्री कॉन्टिनेंट से बाहर है, लैंड से बाहर है। तो बिफोर 60 डिग्री इट इज कॉल्ड एज सब अंटार्कटिका, और अराउंड यू सी अराउंड अंटार्कटिका इट इज कॉल्ड एज मेरी टाइम अंटार्कटिका, और दिस इज कॉन्टिनेंटल। समझ में, अंटार्कटिका 3 पार्ट है, सब अंटार्कटिका, मेरी टाइम अंटार्कटिका बॉर्डरिंग द लैंड, एंड कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट है। इसके ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट में हमारे 4 स्टेट। दक्षिण गंगोत्री समुद्र पर नहीं था, अरे कॉन्टिनेंट, इट वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन पैक्ड आइस, और अभी धीरे धीरे वो जंग उसमें सिंक करके समुद्र के अंदर चला गया है। ये हमारे स्टेशन है। अब आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पे लिखा अमुंडसेन स्कॉट, क्या लिखा है? अमुंडसेन स्कॉट। इसमें हम आते स्लाइड के थ्रू दिखाते हैं, पहले समझिए। अब अंटार्कटिका को बोला जाए तो व्हाट इज अंटार्कटिका? तो अब देखिए उसमें द अंटार्कटिक रीजन रिफर्स, इससे हम फिर जाते हैं। द अंटार्कटिक मतलब दिस ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिक रीजन रिफर्स टू ऑल आइलैंड, यहां पे जितने आइलैंड है, आइलैंड, ऑल आइलैंड, आइलैंड इन आर्सेनिक एरिया एंड कॉन्टिनेंट। यू सी आर्सेनिक आइलैंड एंड कॉन्टिनेंटल एरिया, समझे? द अंटार्कटिक रीजन रिफर्स टू आर्सेनिक आइलैंड, जो समुद्र में आइलैंड है, एंड कॉन्टिनेंटल एरिया, लैंड एरिया है, पूरी पियर शेप्ड है, कॉन्टिनेंटल एरिया lying in the cold Antarctic climatic zone south of the Antarctic convergence, south of the Antarctic convergence, जो बाहर की लाइन है 60 डिग्री, south of the Antarctic convergence, right? अंटार्कटिक कन्वर्जेंस जो हमने लाइन दिखाई, आगे चलिए, अंटार्कटिक कन्वर्जेंस जो हमने दिखे, अंटार्कटिक, हाँ बड़ा करिए, यहां से करो, छोड़ो, ठीक है। देखिए अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक रीजन refers to all oceanic island and continental areas, ठीक है, लाइंग साउथ ऑफ द अंटार्कटिक कन्वर्जेंस, जो 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री को जो लाइन है अंटार्कटिक कन्वर्जेंस जो है, दिस अंटार्कटिक कन्वर्जेंस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड सीजनली वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर सीजन में वेरिएबल। अगर जाड़ा हुआ तो पूरा पानी फ्रीज कर जाता है, बाउंड्री आगे पीछे की सकती है, राइट? सीजनल लेवल अंटार्कटिक कन्वर्जेंस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड सीजनली variable boundary, whereas
फॉर द लीगल पर्पज ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी, एक हर जगह के अंटार्कटिक ट्रीटी, हर जगह इंडिया अपने हर कॉन्टिनेंट की ट्रीटी है। फॉर द लीगल पर्पज ऑफ द अंटार्कटिक ट्रीटी 60 डिग्री साउथ इज 60 साउथ इज ट्रीटेड एज लीगल बाउंड्री ऑफ द अंटार्कटिका, राइट। अब यहां चलिए, इसी को डिफाइन किया था, ये हो गया। नाउ आपने देखा कि एक तरफ पियर शेप था, चोंच जैसे लेफ्ट साइड में निकला था। ये जियोग्राफी वाले बच्चे जानते होंगे, ये देखिए ये निकला है चोंच जैसे। दिस इज टर्म्ड एज पेनिनसुला। पेनिनसुला आप समझ नहीं पाए, व्हाट इज पेनिनसुला? लैंड सराउंडेड बाय वाटर बाय ट्रीज। यस, वेरी गुड वर्ड, गुड वर्ड। पेनिनसुला इज एन एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। इसलिए आपको कभी घबरा, इफ इट यू आर आज मेरीटाइम अंटार्कटिका bordering continent, if you are a continental, entire continent, if you are a sub Antarctica, subtropical means 60 degree, ये पानी के बाहर। Now history of Antarctica in the Mesozoic era, अब यहाँ फिर आ गया Mesozoic, Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic era है। Mesozoic era means 252 million years ago, 252 million means 10 लाख, 250 10 लाख, करोड़ 10 करोड़ यानी 25 करोड़ years ago, the super continent of Gondwana, all 7 continents, जो 7 continent देख रहे हैं, out of this 5 continents were united together, आपस में जो 200 million 200 million ago 5 continents, इसमें क्या है, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अमेरिका यूनाइटेड टुगेदर टू फॉर्म सुपर कॉन्टिनेंट एंड आल्सो नोन एज गोंडवाना लैंड। अब जियोग्राफी के बच्चे जानते हैं कि इतिहास, दिस क्वेश्चन है गोंडवाना, व्हाट इज गोंडवाना लैंड? इट वाज कॉल्ड एज सुपर कॉन्टिनेंट एंड गोंडवाना लैंड एंड इट हैड ए कॉमन लैंड मास, पांचों कॉन्टिनेंट का कॉमन लैंड। लेटर ऑन कॉन्टिनेंट यानी एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट ड्रिफ्टेड अपार्ट। यू सी, अब आप देखिए यहाँ पे ये 5 के 5 जुड़े हुए हैं, राइट। इसको क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट में लॉरेशिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये अंटार्कटिका है, ये गोंडवाना लैंड। समझ में आ रही है मेरी बात को? ये सब यूनाइटेड है। बट आफ्टर 200 years अंटार्कटिका गॉट डिटैच्ड फ्रॉम द सुपर कॉन्टिनेंट एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग टुवर्ड साउथ, यानी कि यहां से डिटैच होकर साउथ की तरफ, इसमें देखिए साउथ की तरफ धीरे धीरे समुद्र में नीचे जाने लगा। तो मीन्स दैट टाइम अंटार्कटिक क्लाइमेट वाज वार्म एज एशिया, अफ्रीका। लेकिन एज सुन एज स्टार्टेड फ्लोटिंग टुवर्ड साउथ, देखिए अलग होकर के ये जा रहा है, ये अलग हो रहा है, अलग होने के बाद slowly moving towards south and ultimately got settled in South Pole. Ultimately got settled. But while going from up north to south, what happened? आपको कभी any one of you have an experience of समुद्री वाटर का अनुभव है? कैसे होता है? नमकीन पानी होता है, और छूने में कैसे होता है, ठंडा या गर्म? गर्म होता है, राइट। समुद्री पानी गर्म होता है, जो आपको बॉम्बे और केरल में जाके देखते हैं ना, कुछ गर्म होता है। लेकिन क्या होता है, फिर मूव टुवर्ड्स 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। व्हेन यू रीच टू 40 डिग्री, आफ्टर दैट यानी 40 and 50 डिग्री, वाटर बिकम्स कूलर, तब पानी ठंडा मिलने लगता है। एंड 40 डिग्री साउथ में व्हाट हैपेंस इन 40 डिग्री साउथ? इधर का गर्म पानी और अंटार्कटिका की तरफ साउथ का ठंडा पानी, यानी वार्म सब ट्रॉपिकल वार्म वाटर मीट एंड मिक्स विथ पोलर कोल्ड वाटर। समझ रहे हैं? तो जैसे तुम गर्म पानी में ठंडा में बलकने लगता है, बॉयल कर बढ़ते से, तो वहां पे देयर आर बिग टाइडल वेव, ऊपर नीचे ज्वार भाटा आने लगता है। तो जिस शिप से हम लोग जा रहे थे, वो शिप ऐसे शिप जो है ऐसे आगे डूबेगा, ऐसे उतराएगा, जिसको कहते हैं पीचिंग। वर्ड टर्म इज पीचिंग। शिप कभी डूबा, फिर उतरा, ऊपर आया, पीचिंग। और ऐसे भी रोलिंग,
कभी इधर कभी जो वो टाइडल वेव जितनी हाई होती हैं, नॉट ओनली आवर शिप गार्ड यूज टू गार्ड बैक 1.5 किलोमीटर बैक, उसके आगे गया उतना फिर पीछे आ गया। नतीजा निकला कि जितने इंडियंस अभी हम आगे बताएंगे उसमें जाते हैं, जब गोवा से उनको भेजा जाता है गोवा में, व्हाट हैपेंस एज सून एज वी रीच टू गोवा, गोवा जानते हैं वेरी अच्छा सिटी है, मॉडर्न सिटी है। इमीडिएटली आफ्टर लैंडिंग इन गोवा, every participant, maybe army, navy, air force, even scientists, young and old, immediately rush to book market and buy half pant. उन दिनों 91 की बात कर रहा हूँ मैं, 91 मीन्स 29 years back, 30 years back. अभी तो सभी पहनने लगे हाफ, क्या बोलते हो उसको, हाफ लोअर को क्या बोलते हो, हाफ पैंट बोलते हो, कैपरी, तो कैपरी से भी हाफ कर दो और छोटा कर दो, हाँ। तो 30 years बैक गोवा में हम लोग जाके जल्दी जल्दी खरीद लिए, एक टी शर्ट ले लिया, 100 रुपए में दोनों मिल गया, और एवरीवन वॉर एंड स्टार्टेड मूविंग इन इंटायर गोवा। फॉरगेट ऑल ऑफ देम, फॉरगॉट दैट दे आर इंडियन, अपने को भूल गए भारतीय, फॉरगॉट देयर रिलीजन के हम ब्राह्मण है, ठाकुर है, मुस्लिम है, क्या है। इवन सिपाही भी स्टार्टेड, गुड मॉर्निंग सर, हाउ यू सर, वेयर आर गोइंग सर, सब अपना धीरे धीरे टूटी इंग्लिश बोलने लगा। बट व्हेन ऑल दीज पीपल रीच टू रोरिंग 40 डिग्री को क्या होता है, 40 के साथ आप लोग सुन लीजिए, दिस इज टर्म्ड एज रोरिंग 40। व्हाई? वार्म सब ट्रॉपिकल वार्म वाटर मीट एंड मिक्स विथ पोलर कोल्ड वाटर एंड काजिंग बिग टाइडल है, बड़ी ऊंची ऊंची लहरें, ज्वार भाटा आता है, तो सिर्फ कभी रोलिंग, कभी पिचिंग, कभी पीछे, कभी आगे। और उस दिन जो अंदर जहाज के अंदर लोग रहते हैं, 3 स्टार फैसिलिटीज होती है, इमीडिएटली लोग अपना दरवाजों को बंद करके कोई हनुमान चालीसा निकाल लेता है, कोई रामायण निकाल लेता है, कोई कुरान की आयतें, सब बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, तब भगवान याद आने लगते हैं। इवन देयर इज अनाउंसमेंट फ्रॉम द क्रू साइड ऑफ शिप कि भाई रिमेंबर योर गॉड, ये भी कहा जाता है, और डर जाते हैं लोग, तो हम लोगों का ही होता है। इन्हीं चलिए ठीक है, अब देखिए इसमें आइए थोड़ा, लेट अस नो हिस्टोरिकल एलिमेंट ऑफ अंडर 72 और 75। कैप्टन कुक, देखिए ज्यादातर आर्मी के लोग भी दे आर वेरी एडवेंचरस। For these regions, tidal regions, Goa is national center polar regions. क्या खोलते हैं आप, खोल लीजिए, क्यों इतना परेशान है सर? गोवा में इन्हीं रीजन्स की वजह से नेशनल सेंटर ऑफ पोलर रीजन्स बनाया गया, अभी बताएंगे ना। एनीवे, आप सारे, माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू, सपोज यू फाइंड सम मिस्टेक ऑन माय साइड, तो हम सिंस आई एम 69 years old, थोड़ा दिखने में दिक्कत होती है, रात में मैंने काफी करेक्शन किया, तो टेल मी, डोंट टेक इट सीरियसली, मिस्टेक हो सकती है। एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम यू कैन आस्क, अपना डाउट कभी भी ड्यूरिंग द सेशन ऑफ लेक्चर यू मे आस्क एनी क्वेश्चन, डोंट वरी, गेट इट। हाँ ठीक है, तुमने पूछा, अभी वो आएगा, अब रास्ते में आएगा। तो सिंस आर्मी पीपुल आर एडवेंचरस, सो फर्स्ट कैप्टन कुक इंसर्किल्ड द अंटार्कटिका, वो बालिंग जारी। देन उसके बाद इसे देखिए, जेम्स क्लार्क, ही जस्ट टच द अंटार्कटिका, कोई जा नहीं पाया। ये क्या है, 1911 14 दिसंबर, राओल्ड अमुंडसेन, नॉर्वे का, राओल्ड अमुंडसेन ऑफ नॉर्वे रीच्ड साउथ पोल, साउथ पोल में दिखाया था मैंने, साउथ पोल ऑन 14 दिसंबर 1911, and just after a month on 13 जनवरी 2012, ये ब्रिटिश एक्सप्लोरर RF Scott, RS Scott reached, but he could not reach to South Pole. Just before 18 kilometers to South Pole, with his 2 companions died because of the blizzards and cold climate and exhaust of ration. How did this come into notice? While Scott was coming back after unfurling the flag there, अपना झंडा फहरा कर जब स्कॉट लौट रहा था, तो देखा 18 किलोमीटर पे मरे पड़े हैं।
लेकिन क्या हुआ कि स्कॉट फाउंड हिज डायरी। स्कॉट डायरी में क्या लिखा था उसने, उसमें डायरी में लिखा था, पढ़ो इसको जरा पढ़ के बताओ। We shall stick it out to the end, but we are getting weaker, of course. The end cannot be very far. It seems a pity, but I do not think I can write more. समझ में बात कि वो जो है उससे ज्यादा नहीं लिखा कि मैं धीरे धीरे हम लोग वीक हो रहे हैं, हमारा एंड नजदीक है, बहुत दूर नहीं है, इससे ज्यादा नहीं, फार द से लुक आउट, मैं हमारे लोगों को देखो, मर गया। ठीक है, ये क्या है देख रहे, अमुट क्या है। अच्छा सुनिए, ये क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों सक्सेस रहा और दूसरा सक्सेस क्यों नहीं रहा। अमुट सेन वाज सक्सेस बिकॉज ही हैड डॉग्स विद हिम। ऑल फूड मटेरियल्स वर ट्रांसपोर्टेड बाय डॉग्स। व्हाइल कमिंग बैक ही स्टार्टेड ईटिंग डॉग्स। जब फूड उसका खत्म हो गया तो डॉग को काट काट के बना के खाने लगे। बट अमुट स्कॉट वाज मैन हॉल्ड। स्कॉट के पास कोई आदमियों के साथ गया सामान लेके। अरे एक आदमी इतना दूर कैसे खाना लेके जाएगा, खाना खत्म होने लगा, बीमार होने लगा, निर्माण। तो इसीलिए टू गिव ऑनर टू स्कॉट ऑल्सो द नेम ऑफ साउथ पोल इज अमुंड सेन स्कॉट। दोनों के नाम पे इस पोल का नाम। दिस इज क्रिटिकल क्वेश्चन वेरी ऑफन आस्क्ड। इस अमुंड सेन पोल, इस सेंटर पोल का क्या नाम है, साउथ पोल अमुंड सेन स्कॉट, दोनों के नाम पे रखा गया है। या क्वेश्चन यू सी हाउ मच cold you can tolerate, what temperature goes in Allahabad, sometimes it's 0 degree, not min minus. You see, first time it was recorded 89 point। ये साला धोखा दे रहा है यार, किसी तरह कुछ कोई बच्चा कुछ पढ़ नहीं है। Anyway, चलिए, you see right side arrow से वो स्टॉक स्टेशन ever lowest temperature ever recorded, lowest temperature। You see right side, you see total, this is total Antarctica है, looking, this is just like pear shape। इनको पिन दे तो वो सही कर देंगे। हाँ, don't get it sir, इसको ये देखिए, Antarctica is looking, हाँ Antarctica is looking, रख दिया, Antarctica is looking like pear shape, pear shape। अभी छोड़ेंगे नहीं इसको, जल जाने के बाद अब छोड़ेंगे। नहीं सेल नया है। तो वो पीछे दे देंगे। अंटार्कटिका इज इसी पियर शेप। लेफ्ट साइड इज पेनिनसुला। पेनिनसुला बता दिया, दैट इज लेफ्ट राइट, व्हाट इज पेनिनसुला, ठीक है, सराउंडेड बाय वाटर, वाटर हो गया। नाउ राइट साइड एरो से राइट साइड यू सी दैट लोवेस्ट एवर रिकॉर्डेड टेम्परेचर वर -89 डिग्री इन स्टॉक स्टेशन। स्टॉक स्टेशन रशियन स्टेशन में था। एंड लेफ्ट टॉप पे पर से देखिए lowest temperature was -93.2 degrees in 2010, right? And इसके बाद जो है बाद में 2013 में 30 डिग्री। तो एवर अभी प्रेजेंटली द लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ अंटार्कटिका हैज बीन रिकॉर्डेड -94.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज सो कोल्ड, दिस इज सो कोल्ड। और यू सी द फिगर ऑफ अंटार्कटिका, इट इज टोटली कवर्ड विथ फ्रोजन आइस। 98% of the 98% of the प्रेस थोड़ा हार्डली 98% of this 98% of कॉन्टिनेंट का साइज क्या है, 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल एरिया ऑफ अंटार्कटिका इज 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड 98% ऑफ टोटल कॉन्टिनेंट इज कवर्ड विथ थिक आइस शीट। आइस शीट से, आइस शीट आपने नैनीताल में देखा होगा, शिमला में कोई गए हैं बर्फ में देखा है, एनीवन नो? आपने सोफाल देखा है कि नहीं देखा, टीवी में देखा होगा। तो आपने 2, 4, 5 सेंटीमीटर या फीट में देखा होगा। हमने ओली में 6 फीट बर्फ में हमने काम किया है इंडिया में। अब क्या होता है, 98% इज आइस कवर्ड। उस थिकनेस क्या है उसकी सीट की, 800 मीटर टू 3.4 और 4 किलोमीटर, इतना ऊंचाई तक है। 3.4 किलोमीटर की थिकनेस है ये इसका। एंड 2% एरिया ऑफ अंटार्कटिका इज आइस फ्री।
बीच बीच में वहां पे आइस ही नहीं, एंड दैट आइस फ्री एरिया इज टर्म्ड ओआसिस, OASIS। आपको जितने फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में या एसी में नाम यही सब मिलेंगे आपको। पेंगुइन बनी होगी, अंटार्कटिका बना होगा, ओआसिस बना होगा, मैत्री बना होगा, बिकॉज आप ओआसिस, ओआसिस को क्या बोलते हैं? ख्वा, जहां ऋषि मुनि सुना कि बड़े गुफाओं में वो अपना तपस्या करते थे, जैसे भारतवर्ष में बताया जाता है। ओआसिस आइस फ्री। और ये आइस कहां से आई? टेल मी। अभी आपको हमने बता दिया, अप्लाई योर माइंड। आपको बताया कि एज सुन एज अंटार्कटिका स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग फ्रॉम सुपर कॉन्टिनेंट, it started moving towards south, and after 40 degree crossing 40, snowfall started, and right from 40 degree to the end there was a thick sheet traffic। तो तभी से आज तक की उसमें स्नो बैठी हुई है। नाउ इसके साथ साथ थोड़ा और बताते जाएंगे। अंटार्कटिका इज कोल्डेस्ट डिजर्ट, यू नो। कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ इन अंटार्कटिका -94.7 सेल्सियस। कोल्ड, अब इसे थोड़ा और जान लीजिए आपको, सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कंप्लीट। कोल्डेस्ट सिटी ऑन द अर्थ इज क्या है? द कैपिटल सिटी ऑफ वास्ट साइबेरियन रीजन नोन एज साखा रिपब्लिक। एंड इन इंडिया में बोला जाए, द्रास इज द वर्ल्ड सेकंड, आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन देयर, आई हैव वर्कड देयर। द्रास इज द वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस आफ्टर साइबेरिया, where temperature goes -30 to -35 द्रास। ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, बिटवीन लेह लद्दाख एंड श्रीनगर। हॉटेस्ट, हम लोग वहां पे बस से आ रहे थे, लेह लद्दाख से श्रीनगर आए थे, द्रास में उसने चाय पी ली। उनके बंद जो होते, बंद जो फाइबर, वो इतने हार्ड थे, किसी को मार दो तो उसका सर फट जाएगा। हॉटेस्ट, इसी के बारे में हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज डेथ वैली नेशनल पार्क ऑफ कैलिफोर्निया, where the temperature has been recorded -50 degree, माइनस नहीं, 54 डिग्री सेल्सियस और जस्ट 4 days बैक, अभी 4 दिन पहले वहां का टेम्परेचर क्या था? 54 डिग्री सेल्सियस। एंड आफ्टर 108 साल बाद, because in July, on 10 July 1930, the temperature was recorded 56.7 degree। देख रहे हैं? तो 56.7 से अभी हाईएस्ट टेम्परेचर 52 was recorded just 108 years later। ये आपको अलग से बोल दिया कि नाउ अंटार्कटिका में क्या? द ग्लेशियर, अंटार्कटिका इज फुल ऑफ ग्लेशियर्स। आई सी द ग्लेशियर्स ऑफ अंटार्कटिका कंप्राइज अबाउट 90% ऑफ अर्थ आइस। पूरे विश्व का, धरती का 90% आइस, एंड दस द कॉन्टिनेंट होल्ड्स अबाउट 70% ऑफ द फ्रेश वाटर रिजर्व ऑफ द अर्थ इन सॉलिड स्टेट। समझ में क्या? फ्रेश वाटर रिजर्व में अर्थ के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस मॉइस्चर में होता है, लिक्विड पानी जो होता है सॉलिड स्टेट में। नाउ अर्थ में थोड़ा ये हम हट के बता दे रहे हैं जरा से। इसके लिए वाटर रिसोर्स क्या है हमारे पास? 90% वाटर इज आर्सेनिक। देख रहे हैं ना? सलाइन 97 सरफेस देख रहे हो? ये क्या फ्रेश वाटर देखिए, मैं बता रहा हूं 97% वाटर इज सलाइन दैट इज रिमेन्स इन आर्सेनिक। समुद्र में 90, एंड दिस इज फ्रेश वाटर 3%। टोटल वाटर हमारे अर्थ में क्या है? 3%। देखिए, सी द फन, सी द ब्यूटी, ओनली 3% फ्रेश वाटर रिमेन्स ऑन अर्थ। And out of this distribution of this 3%, 68.7% on ice cap and glaciers। ये हमारे अंटार्कटिका में, ग्लेशियर्स में, गंगोत्री में, जमुनोत्री में है। एंड एक फिगर क्या है? 13.1% ग्राउंड वाटर, जो हम आप सबमर्सिबल से निकालते हैं। बचा कितना? इसे 1.2% ये फ्रेश वाटर। देखिए, फ्रेश वाटर 3% है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्राउंड में, इसमें ग्राउंड में, आइस कैप में है। ओनली 1.2% इज सरफेस वाटर। सब फ्रेश वाटर का 1.2% सरफेस वाटर है, बाकी सब धरती के नीचे है। आउट ऑफ 1.2%, 0.9% वाटर इज इन वेयर? मॉइस्चर, इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर।
soil are in the body of animal and plant. Water inside the animal and plant is called as biologically bound water. And rest 0.3%. देखिए फ्रेश वाटर का 1.2%, 1.2% का जस्ट 0.3% रिमेन्स कहाँ है? ये क्या लिखा है इसमें? लेक्स में 87% लिखा है, यस, एंड 11% इन स्वैम्स, दलदल आसाम वगैरह में, एंड ओनली 2% इन रिवर. गेटिंग माई पॉइंट? कितना फन है. ओनली इस 3% का 1.2%, फिर फर्दर 3%, ओनली 2% इन रिवर. रिवर में अब आप बोल रहे हैं कि रिवर क्यों नहीं सूखेगी? नाउ यू कैन रिप्लाई, रिवर क्यों नहीं सूखेगी? सो लेस वाटर एंड वी आर बैडली यूजिंग वाटर. गाय आपको इसलिए नहीं बनाई गई कि आप उसका दूध पी लो. उसके नंदी भूखे रहे और आप नंद गोपाल गुप्ता पी जाओ दूध पूरा. नेचर ने आपको गाय नहीं दी है इसलिए कि आप उसका मांस खाओ, दूध पी लो. फिर उसका बच्चा क्यों दिया? आप अपना दूध क्यों नहीं जानवरों को पिला देते? वी आर लिविंग अगेंस्ट नेचर. वी आर लिविंग. चलो दूसरी बात है, बात है तो यहां तक समझे भी नहीं देगा, फिर देगा. नाउ अब टोटल यूज ऑफ वाटर रिसीव, ग्राउंड वाटर हो या रिवर वाटर हो, इसी का यूज हम कर रहे हैं ना. 70% वाटर इज यूज इन एग्रीकल्चर ग्लोबली, पूरे विश्व में, एंड 25% इन इंडस्ट्री एंड 5% इन फॉर डोमेस्टिक यूज. बट इन इंडिया, सी द फन इन इंडिया, 80% in agriculture. Why 80%? Because India is agriculture based country. Agriculture कृषि प्रधान देश है. And 175 million hectare land is under agriculture. In industry we are using only 3%. As against 25 हमारे देश में 3%. That's why हमारे यहाँ कहते कुछ बनता ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं. We are using everything from China, Japan, Russia and what not. इसी द डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री है ही नहीं. वी आर यूजिंग ओनली 3% एंड फॉर डोमेस्टिक यूज 3.5%. यहाँ तो 5% हमारा. इसीलिए हर जगह आज सुकुटी में तो पानी की मारामार, करेली में पानी की मारामार. वी हैव नो डोमेस्टिक वाटर. डोमेस्टिक सबसे ज्यादा कहाँ में? 30.5%. हमारा मैक्सिमम वाटर 13.5% इज यूज इन electricity generation, because in world they are not using water in electricity generation, they are using by other means, by radioactive elements. अभी हमारी टेक्नोलॉजी वी आर वेरी फार में. पहली बात समझ में आ रही मेरी बात? आल बच्चा क्लियर हो रही बात? हाँ ठीक, चलिए. नाउ अब देखिए अबाउट अंटार्कटिका. अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका साउथ पोल ऑफ द अर्थ एंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, राइट. 5th लार्जेस्ट, 5वां सबसे बड़ा. 66 डिग्री साउथ पोल से अंटार्कटिक सर्किल शुरू हो जाते हैं और डॉटेड लाइन जो दिखाई दे. कोस्ट लाइन मेजर्स 17,968 किलोमीटर. इसकी कोस्टल एरिया. इंडिया की कितनी है? 7,600. हाँ, 7,600. इंडिया की कोस्ट लाइन, राइट? नो ही इज राइट. आप लैंड बता रहे हैं, आप भी सही बता रहे हैं. देखो अच्छा हुआ, आई एम हैप्पी विद बोथ ऑफ यू कि पढ़े दोनों, लेकिन तुम्हारे खोपड़े में कंफ्यूज हो रहा है, उल्टा बता दिया. 15,200 और लैंड का है. कोस्ट लाइन इज 7,615, राइट. और नियरली ट्वाइस, अंटार्कटिका नियरली ट्वाइस द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया का 2 गुना बड़ा है. लार्जर देन, अगर इंडिया चाइना को एक साथ रख दिया जाए तो उससे भी बड़ा है. 1.3 टाइम्स लार्ज एज यूरोप एंड पॉपुलेशन इज 0. इतना सब होते हुए पॉपुलेशन इज 0. इसीलिए को कहते हैं नो मैंस लैंड, नो मैंस. एंड 50,000 टेम्पोररी रेजिडेंस. वहां पे 50,000 में जो वहां एक्सपीडिशंस जाते हैं, 1,000 पीपुल्स ईयरली स्टे अराउंड द ईयर एंड 4,000 पीपुल कम बाय, राइट. विल्सन मैसिफ इज द हाईएस्ट पीक. अंटार्कटिका में से यहाँ एवरेस्ट है, अंटार्कटिका में विल्सन मैसिफ इज हाईएस्ट पीक. अभी क्यों ज्यादा न्यूज में आई? आवर इंडियन एम्पूटी फर्स्ट वर्ल्ड वुमेन अरुणिमा सिन्हा. सुना है नहीं सुना? फर्स्ट एम्पूटी फीमेल
offward climbed this peak in 2013. सब पूछे जाते हैं, who are the Arunima Sinha? शिवाजी बाली footballer. While she was going to Delhi from Lucknow by Padmavati train, she was thrown by the gangster. चेन स्नैचिंग में, तो चेन पर वो स्नैचिंग हो रही थी, ठोक दी गई थी. लकली अनलकली दूसरी पट्टी पे ट्रेन आ गई, उसका पैर कट गया. सी 30 years old लेडी ने साहस देखिए, खड़ी हो गई. सी मेट बचेंद्री पाल, फर्स्ट इंडियन लेडी हु रीच टू एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट. उससे मिली. उसने इसको इतना मोटिवेट किया कि विद इन 2 years शी स्टार्टेड क्लाइंबिंग ऑल पीक्स एंड शी हैड Arunima Sinha has climbed almost all highest peak of the world. Antarctica is home to more than 70 lakes. Lying thousand. ठीक है. अब अंटार्कटिका के बारे में समझ में बात है. Now फिर से सुनिए. About Antarctica. Antarctica is coldest, right? Temperature goes to 93.2. लेकिन अभी 94 भी रिकॉर्ड कर गया. Windiest. यहाँ पे सबसे ज्यादा विंड तेज चली. कितना? More than 372 किलोमीटर पर आवर. और एवरेज क्या दिया है? 54 किलोमीटर. इंडिया में जो हमारे पास स्टॉर्म आता है, बॉन्डर देखा है स्टॉर्म, इसकी स्पीड होती है 200 किलोमीटर पर आवर. लेकिन इंडिया में इतना तेज नहीं आता. हमारा जो बॉन्डर क्या बोलते हैं उसको, जो विंड स्टॉर्म के ऊपर जाता है, कहते हैं बच्चे उड़ जाएंगे उसमें. अरे बोलने में शर्माओ नहीं. टूटी फूटी हिंदी, हमने कहा हिंदी आपको सेलेक्ट कराती है, ध्यान देना. आप फिर छिपने लगे, शर्माने लगे. हिंदी सेलेक्ट कराती है, अंग्रेजी पर्सनालिटी डेवलप करती है. स्टॉर्म को क्या तूफान बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं. बॉर्डर क्यों नहीं कहा तुमने? सब गांव के लोग हो तुम लोग, बॉर्डर नहीं जानते. बॉर्डर तो हो गए लड़के, बॉर्डर त्रिपाठी जो करेंगे मोहल्ले में. लेकिन बॉर्डर जो वो स्टॉर्म ऐसे से उड़ता है, and every piece of paper, dust, dirt and are blown up higher. लेकिन अंटार्कटिका में 372 भी इसके बारे में. डस्ट, सूखा, sometimes ह्यूमिडिटी गोज 0.03 पर. और आदमी को जिंदा रहने के लिए 60% होनी चाहिए हम लोगों के लिए ह्यूमिडिटी. एम्प्टीएस्ट नो मैंस लैंड. 6 month डे एंड 6 month नाइट. वहां पर क्या फीचर क्या है? 6 महीना दिन एंड 6 महीना रात. एग्जैक्ट नहीं, अभी हम आ गया. So the Antarctica is coldest, windiest, stormiest, harshest, desert, fairest मतलब शुद्ध, remotest सबसे दूर, और क्या है? हाईएस्ट सबसे ऊंची पहाड़ी. मोस्ट एक्सेसिबल मतलब मोस्ट एक्सेसिबल, बहुत कम इसमें खोजा गया है. एक्सप्लोर्ड, अनस्पॉइल्ड स्पेसियस ऑस्टियर मतलब बहुत सीधा साधा है, स्पॉइल नहीं किया गया अभी तक. फैशन एंड क्लीन, मोस्ट फॉरबिडिंग एंड क्या है? वाइट आइसी कंटिनेंट, लाइंग ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रिकली अबाउट द साउथ पोल. अब बात समझ में नहीं आती. नाउ दिस इज ऑल अबाउट अंटार्कटिका. कम व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका? यहां से देखिए. ए ह्यूमिक सॉइल. देयर इज नो सॉइल इन अंटार्कटिका and I was sent to grow vegetables without soil. वो बाद में दूसरे चौथे लेक्चर में आएगा. तो देयर इज ए ह्यूमिक सॉइल. का सॉइल क्या है? व्हाट इज सॉइल? सॉइल पे भी एक लेक्चर लेंगे अगर त्रिपाठी जी बुलाएंगे हमको. सॉइल क्या है? सॉइल में क्या होना चाहिए? बालू है, बालू सॉइल है क्या? नो. जहां पे जिसमें मटेरियल में कार्बन एंड नाइट्रोजन है, दैट इज सॉइल. कार्बन एंड नाइट्रोजन. बालू में कार्बन नाइट्रोजन तो नहीं होती ना. तो इन अंटार्कटिका देयर इज ए ह्यूमिक. दो तरह के सॉइल है, ह्यूमिक एंड ए ह्यूमिक. ह्यूमिक मींस कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन से सब फसलें को रोकी जाती है. और ए ह्यूमिक विदाउट कार्बन है, वहां कार्बन है. क्योंकि वो रॉक्स जो होती हैं, पत्थर जो बहुत तेज से 374 किलोमीटर की हवाएं चलती हैं, हवाओं से वो टूटते हैं उसके टुकड़े. बर्फ उड़ती तो तेज बर्फ जब पत्थर में रहते, small particles in the form of sand particle that accumulates here and there. उसी को हम सॉइल कहते हैं. एवरी ऑर्निथोजेनिक सॉइल. ऑर्निथो सॉइल कहते हैं ऑर्निथोजेनिक. ऑर्निथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बर्ड.
You have heard about the penguin in Antarctica and other birds. Penguin remain in groups. Big flock, 8,000 to 40,000 in one group. एक ग्रुप में 8,000 भी होती है, 40,000 भी हो सकती है. Where they are standing, are settled, their fecal matter, यानी their droppings create soil that is called as ऑर्निथोजेनिक. बाढ़ के फीकल मैटर से होता है. जैसे आपके घरों में पीपल का पेड़ कैसे जम जाता है, मंदिर पे, आपके घरों पे पीपल का, हमारे में कई जगहों पे बिल्डिंगों में पीपल का पेड़ क्यों जम गया है? क्योंकि बाढ़ आके वहां पे कोई पीपल का दाना खा करके आई फ्रूट और उसको बीट कर दिया फीकल, तो बीज तो ऐसे जमेंगे नहीं, ड्राई हो जाएगा. बट इट रिमेन्स विद द फीकल मैटर, दैट इज सॉइल. उसमें ग्रो करके रूट ले लिया, बढ़ता चला गया, रूट ले लिया, बढ़ता चला गया. सेकंड, पोलर डिजर्ट. पोलर डिजर्ट बता दिया. ड्राइस्ट विंड चिल, जब वहां पे टेम्परेचर जैसा चला जाता है, हवा चलती है, टेम्परेचर लो इज नो प्रॉब्लम, बट व्हेन देयर इज विंड इट बिकम्स चिल्ड. फोटो में दिखाएंगे, अभी हंसोगे. ब्लीजर्स, ब्लीजर्स में व्हेन देयर इज हाई विंड, ice particles broken into small size are blown up, ऐसे उड़ते रहते हैं. और ये जैसे आपके आंधी आती है, बहुत तेज बरसात होती है, बहुत कम दिखता है ना, योर विजिबिलिटी इज लास्ट, तो दूरी दिखाई नहीं. जब धूल की आंधी आती है तो बहुत कम दिखता है. बट इन अंटार्कटिका व्हेन देयर इज ब्लीजर्स, व्हेन देयर इज आइस फ्लाइंग, व्हाट हैपेंस? You cannot see at a distance of 1 meter. आप इस लड़के को नहीं देख सकते वहां, इतना सफेद हो जाता है, क्योंकि वहां डस्ट हो नहीं, सब सफेद सफेद बर्फ होती है. तो हम वी कैन नॉट 1 meter apart we cannot see. And in this condition what we have been trained, हम लोग ट्रेन किया जाता है कि हम दो बैठ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ जाए और पत्थर को पकड़ के बैठ जाए. सपोज माई बटन इज ओपन, आप जैकेट, और हवा घुस गई, कैन नॉट सेव माई जैकेट. वो भाई तेज हवा सब उड़ा के लेके चली जाएगी, इतना तेज होता है. नाउ द कंटिन्यूअस एंड डेज एंड नाइट वहां पे आएगा, बता दे. नाउ अरोरा ऑस्ट्रेलिस, एक फिजिक्स की लड़की कौन है? एक फिजिक्स बताया किसने? फिजिक्स कोई पढ़ रहा है, बताया तो किसी आप लोग में से? हाँ, वो आप है ना फिजिक्स वाले? फिजिक्स. व्हाट इज अरोरा ऑस्ट्रेलिस? सी, आपके मतलब क्या है? इलाहाबाद हिस्ट्री में नेवर हर्ड दिस. अरोरा ऑस्ट्रेलिस commonly known as southern lights. This is commonly known as southern lights. A glow observed in the night sky near the south pole. वो कैसे दिखता है? ये देखिए, हमारा मैत्री स्टेशन है, मैत्री स्टेशन समुद्र है, समुद्र में ग्लो ऑफ लाइट है. ये कोई चीज है, लाइट है, ऐसे जा रही है जो आपको एक एक्टिव बिल्कुल साड़ी के, किसी महिला की साड़ी की तरह लहराती है, जिसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस. हाँ हाँ. नाउ अब लेट अस स्टार्ट. ये तो थोड़ा अंटार्कटिका अभी है, थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो कुछ? अच्छा चलिए, 10 मिनट बाद अभी. वाइज टू अंटार्कटिका, हाउ डिड आई स्टार्ट वायर्स फ्रॉम गोवा टू अंटार्कटिका? यू सी, पहले इसके देख लीजिए. सपोज आप लोग पूछे क्या मैं जा सकता हूं या जा सकती हूं? यस, बट देयर इज सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन. देयर इज एंटार्क्टिक ट्रीटी, फर्स्ट साइंड बाय 12 कंट्रीज इन 19, पहले 12 कंट्री के लोगों ने 1959 में इसको साइन किया. And the countries which has signed in Antarctica can send his or her participant to Antarctica. The countries who have not signed cannot, because governed by Antarctic Treaty. There is a rule. Presently 49 countries have signed. अभी 52 हो गई. लेकिन ट्रीटी में क्या है? व्हाई ट्रीटी? ट्रीटी प्रोहिबिट्स कि आपको अंटार्कटिका में क्या नहीं करना है. नो मिलिट्री एक्टिविटीज, यू कैन नॉट टेक वीपन्स देयर, आर्म्स अम्यूनिशन देयर. नो मिनरल माइनिंग, आप कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत है, खोज नहीं कर, फिजिक्स वाले बहुत है,
न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, नो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कोई टेस्टिंग पोखरण की तरह नहीं कर सकते। नो न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, आपका कोई भी न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल नहीं कर सकते आप। एंड व्हाट अंटार्कटिक ट्रीटी सपोर्ट्स, यू हैव टू गो देयर फॉर ओनली साइंटिफिक रिसर्च, प्रोटेक्ट द कॉन्टिनेंट्स इकोजोन, उसको सम्मान करना। और अंटार्कटिका इज टू बी यूज्ड एट नेचुरल लेबोरेटरी, इसलिए अंटार्कटिका को कहा जाता है नेचुरल लेबोरेटरी। सपोज आपको जाना है तो अभी आप कैसे जाना बताएंगे, वहां का यू हैव टू मेक ए प्रोजेक्ट और प्लान बेस्ड ऑन द रिसोर्स ऑफ अंटार्कटिका में, क्या चाहे अर्थ साइंस हो, मटेरियल साइंस हो, रेडिएशन साइंस हो, सोलर साइंस हो, लाइफ साइंसेज हो, अकेटिक हो, कुछ भी आप जो व्हाट एवर इज अवेलेबल इन अंटार्कटिका, you make a plan on that and you have to project before panel of expert in a big hall, crowded big hall, you have to present there. And if your project is accepted, then you will be first sent for rigorous medical examination. क्या नॉट मेडिकल जैसे PCR RT-PCR की तरह नहीं, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, आज निगेटिव आया तो कल पॉजिटिव, कल पॉजिटिव, आल बकवास। यू हैव टू गो अंडर रिगरस मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर अ बिग एक्सपर्ट पैनल ऑफ नॉमिनेटेड हॉस्पिटल इन दिल्ली। यानी मेडिकल के बाद फिर आपको ट्रेनिंग कराई जाती। चलिए अभी धीरे धीरे आएगा। ये देखिए मेडिकल के बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग कहाँ? हाई भागीरथी ग्लेशियर, यू नो भागीरथी ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर, गंगोत्री, जमुनोत्री, गंगोत्री, गोमुख जहां से गंगा जी निकलती है, गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री जहां से गंगा जी लेफ्ट साइड से निकलती है तो उसको कहते हैं गंगा जी नहीं कहते, भागीरथी, भागीरथी रिवर। अपोजिट साइड से निकलती है अलकनंदा। क्या निकलती है? अलकनंदा। और जो टॉप है भागीरथी ग्लेशियर कहलाता है, जहां भागीरथी जी जहां से गंगा जी को लाए, तो राइट साइड में अलकनंदा निकलती है। राइट, अलकनंदा विष्णु प्रयाग में मिल जाती है धौली गंगा से। अब वही अलकनंदा आगे आती है नंद प्रयाग मिल जाती है नंदाकिनी से। वही अलकनंदा कर्णप्रयाग में आकर के मिल जाती है, काली दूसरी रिवर है मिसिंग, कर्णप्रयाग का। अब वही अलकनंदा देवप्रयाग में मिल जाती है मंदाकिनी से, जो मंदाकिनी इसमें फिल्म आई थी ना, फिल्म देखी मंदाकिनी की, सुन बाबा सुन वाला गाना नहीं सुना? अरे कैसे लड़के हो तुम वहां पे। अब वही अलकनंदा देवप्रयाग में उधर से भागीरथी आ रही है, तो देवप्रयाग में दोनों देयर इज कॉन्फ्रेंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा, देन गंगा स्टार्ट्स। मेरी बात समझ, 5 जगह प्रयाग है, 5 प्रयाग। देन वही आके समुद्र यहाँ पे जमुना में मिलके हमारा एक दिस इज महाप्रयाग, प्रयागराज। प्रयागराज क्यों कहते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा प्रयाग। तो अब वे भागीरथी ग्लेशियर पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखिए सारे के सारे कोई कराओ तो भी मजा आएगा। देखिए अलकनंदा में गए, वहां रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं। क्या करना है? जोर से दबाना पड़ेगा। अरे यार जोर से दबा तो कितना यू आर यंग, आई एम ओल्ड। तो एनीवे दिस इज, ये वो डस्ट नहीं है, डर्ट नहीं है, ये पूरा बर्फ है पूरा। आपको लग रहा है इसमें धूल जम गई इसलिए सफेद नहीं दिख रही है, हमें धूल जमने से सफेद नहीं दिख रहा। चलिए दिख रहा है कोई बात नहीं। एक छोटा सा ये राइट, इसमें भागीरथी, इसमें स्नो कटिंग भी कराई जाती है। हम लोगों को स्नो कटिंग कराई जाती है, स्नो पे चढ़ना सिखाया जाता है। सपोज समथिंग हैपेंस रॉन्ग इन अंटार्कटिका, देन यू हैव टू बी वेल ट्रेन्ड, you have to be trained to escape from the any ill consequences। और आप देखिए फिर उसके बाद देखिए ऊपर बैठे पहाड़ी पर, नीचे रस्सी लगी, मैं बीच में लटका हूं, ऊपर से बैठ करके ये रस्सी में ठेल देते हैं। आप नीचे कैसे उतरना? हाउ? हाँ, ये बीच में लटका हुआ, ये बीच में देख रहा, तो ये आ करके, हाँ जो लटका हुआ पोर्शन यहाँ पे देखिए वो ठेल दिया नहीं। तो दिस टाइप ऑफ रिगरस ट्रेनिंग इज टू बी परफॉर्म, अदरवाइज यू कैन नॉट गो टू अंटार्कटिका। नाउ जब शिप चलता है गोवा से, बताया आपको गोवा में पहले दिन कहानी बता दी कि सब नहा धो के अपना घूमते खाते हैं। गोवा में तमाम हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। शिप धीरे धीरे जब चलता है तो हमने बताया कि इंडिया कहाँ पर है, 10 डिग्री नॉर्थ
टू इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर है, राइट? व्हेन ही क्रॉसेस इक्वेटर तो 20 डिग्री चलेगा, 30 डिग्री धीरे धीरे जा रहा है, फिर ये मॉरिशस पहुंच जाएगा, तमाम बीच में और आएंगे, अपन अपना और आता है मालदीव आएगा, मालदीव के बाद मॉरिशस आएगा, मॉरिशस में हम लोग रुकते हैं 2-4 दिन, मॉरिशस के बाद अगेन भी स्टार्ट हो गए, तो मॉरिशस के बाद हम चलते हैं, शिप चला जा रहा है, बहुत बड़ा शिप, इट इज 200 फीट वाइड एंड 200 फीट लॉन्ग, इसमें काफी सामान होता है और 5 स्टोरीज का होता है। अब दिस शिप इज नॉट फ्रॉम इंडिया, दिस इज फ्रॉम स्कॉटलैंड, इसका नाम है थुलेलैंड, थुलेलैंड, लैंड मीन जैसे स्कॉटलैंड, फिनलैंड, पोलैंड, तो उनके नाम होते हैं थुलेलैंड, इस शिप का दिस इज नेम ऑफ थुलेलैंड शिप। ये जब वहां से स्टार्ट होता है, व्हेन द इसे हम लोगों को छोड़ने मेरे पेरेंट्स, भाई बहन, सभी के सारे पार्टिसिपेंट्स के वहां पे खड़े रहते हैं गोवा में, बीच के जैसे पोर्ट से निकलेगा। अब आपको समझिए 1 हफ्ता तो फैमिली के साथ सब लोग खाते पीते हैं, मजा लेते हैं, घूमते हैं, बड़ा अच्छा ये दिस एंड दैट, गाना पीना होता है। एज सुन एज सिर्फ देखे अपार्ट हो गया, अलग हो गया, और लोग चढ़ रहे हैं, तो इतना लोग रोते हैं कि भैया आप तो लौट के ही नहीं आएंगे, इतना रोते हैं घर वाले कि लौटे ना लौटे कोई भरोसा नहीं इनका, और रोते काफी हैं, वहां बहुत खतरनाक एरिया है, वो खतरनाक नहीं है। अब हम जैसे जैसे चलते हैं, ये थोड़ी पहली साइड है, व्हाट हैपेंस आफ्टर 40 डिग्री, 40 डिग्री पे हमने बोल दिया दैट इज रोरिंग 40, वहां पे व्हाट हैपेंस, वार्म सब ट्रॉपिकल वाटर मीट एंड मिक्स विद कोल्ड पोर वाटर, दैट क्रिएट्स बिग टाइडल, ज्वार भाटा उठाता है। अब देखिए जैसे जैसे हम जाते हैं, पहले पानी जो है देखिए छोटे से छोटे कणों में ये ऐसे जमता चला जाता है, रुई के फाहे की तरह दिख रहा है आपको, रुई के, और फिर बाद में इकट्ठा होता है, पहले रुई के फाहे की तरह जमता जाता है, फिर देखिए ये पपड़ी टाइप की बनती चली जाती है, राइट? फिर आप देखिए पैक होने लगी, ये सारी की सारी पैक हो रही है, पैक धीरे और आगे आ रहे तो पूरा पैक, ये पूरी पपड़ी पैक डाइस हो गई। अब इसमें हमारा शिप चला जा रहा है, शिप चला जा रहा है। शिप में देखिए क्या होता है कि बीच में ऐसे रास्ते बन जाते हैं, डाइवर्जेंस हो जाता है, जिसके थ्रू शिप अंदर जाता है। इस डाइवर्जेंस को रास्ते कहते हैं पोलिनिया, पोलिनिया। ये देखिए आइस शेल्फ, देखिए आइस शेल्फ क्या था, अबाउट 90% ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ अंटार्कटिका इज बॉर्डर बाय फ्लोटिंग ग्लेशियल आइस शीट्स, और तैर के बड़े बड़े आइस शीट होते हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन आइस शीट एंड आइस शेल्फ। आइस शीट, ये शीट दिख रही है, अभी आइस शेल्फ दिखा है, नोन एज आइस शेल्फ, एंड these ice shelves undergo seasonal changes। ice shelf क्या undergo सीजन के हिसाब से, गर्मी आई तो छोटे हो जाएंगे पिघल के, सर्दी आई तो और बड़े हो जाते हैं। पोलिनिया क्या है, ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड ऑफ द आइस, ग्रोथ पीरियड क्या होगी, जाड़ों में आइस बढ़ने लगेगी, जमने लगेगा, वो ग्रोथ पीरियड, और गर्मियों में वो आइस पिघलने लगे। During the growth period of ice, when there is wind, the winds at the surface very often induces divergence, क्रैक पैदा कर देती है, और वो पोलिनिया बन जाता है, रास्ता बन जाता है, और पोलिनिया करीब 1400 किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। 1400 किलोमीटर लंबी। ये देखिए पैक डाइस आ गई, पैक डाइस के बाद जमता चला जा रहा है। नाउ अरे हम पीछे जा रहे हैं, पैक डाइस, जैसे अब देखिए आइस शेल्फ, आइस शेल्फ का फिजिक्स वाले जनाब, क्या नाम है आपका फिजिक्स वाले? इंग्लिश को तो हो गया, आप फिजिक्स वाले क्या नाम है आपका? घबराओ नहीं ना, आप प्राइमरी के बच्चे नहीं, हम लोग तो प्राइमरी के बच्चे में प्राइमरी पढ़ते थे, टीचर पूछता था कुछ तो हम मुंह छिपा लेते थे। इवन घर में मेहमान आते थे, हम पूछते, हम दीवार में इतना चिपक जाते थे कि कोई छुड़ा नहीं सकता था। तो अब आपकी स्टेज नहीं, आप बड़े हो गए हो, क्या नहीं आता है तो क्यों उसमें घबराने की क्या बात है, हमें भी नहीं आता था यार। आइस शेल्फ, अब आपको पता है कि बर्फ कितना पानी में ऊपर होती है, कितना नीचे होती है, ये फिजिक्स वाले ही जानते हैं, 12वीं तक जो पढ़ा जानता है। ये मैं कल बताओगे, अब नॉट गिविंग यू आंसर। 110 ऊपर रहता है, हाँ 110 ऊपर रहता है, 9 समझ में आई बात ना, जितना दिख रहा है इसका 9 गुना नीचे है, 9 गुना। और सीधे आर्सेनिक वाटर इज सलाइन, आर्सेनिक वाटर इज नमकीन,
तो नमक किसी पानी में डाल दोगे तो पानी और कोल्ड हो जाए, टेम्परेचर गोज लोअर। तो हाउ ये पानी कैसे, बर्फ कैसे बन गई? ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड सॉफ्ट वाटर ऑफ सलाइन वाटर आसन, ये समुद्र का सॉफ्ट वाटर जो दैट कन्वर्ट्स इनटू आइस, नमकीन पानी नहीं उसका, तो ये इसको पिघला करके हम लोग पी भी सकते हैं किसी आइस। इसमें देखिए चला जा रहा है सिप तोड़ता हुआ, ये सिप थुलेलैंड आइस कटर है, आइस कटर है, आइस को कट करते हुए। इन इंडिया अभी हमारा देश इस लायक नहीं हो पाया कि आइस कटर सिर्फ हम बना लें, अभी हमारे पास आइस कटर सिर्फ ही नहीं कोई है सिर्फ, लेकिन आइस कटर है, चलो आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी बन जाएगी। ये अब जाके देखो फाड़ रहा है, कट करके अंदर घुस रहा है, पैक्ड आइस में घुसता हुआ चला जा रहा है, कभी किनारे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है। ये पैक्ड आइस पूरी पैक्ड, अब इसमें हम लोग चल सकते हैं, उतर के गाड़ी चलाते हैं, खेलते हैं, सामान ट्रक, ये आ करके आफ्टर व्हेन वी गेट कंफर्म दैट आइस इज टोटली पैक्ड, देयर इज नो हार्म, देन वी एंकर और सिप एंकर उतर करके घूम रहे हैं हम लोग। हमारे साथी कुछ साइंटिस्ट हैं, सिपाही साहब हैं, और बाएं लेफ्ट साइड में आर्मी के सिपाही, राइट साइड में NBRI के डायरेक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, बीच में मैं भी दिख रहा हूँ। ये सब टोपी लगाए इतने ठंडे में, हम इलाहाबादी कहाँ टोपी लगाएंगे? किसी नाउ द क्लोथिंग इन अंटार्कटिका। अब शिप के पास हमारी वो ट्रक खड़ा हुआ है, पिस्टन गोली, वो ढोने का काम करता है। जैसे शिप में क्या जाता है, हमको फ्यूल चाहिए, हमारे पास हेलीकॉप्टर, शिप में 5 हेलीकॉप्टर होते हैं, 2 नेवी के चेतक एंड 3 फ्रॉम एयरफोर्स, Mi-8 हमारे टाइम में, अपने Mi-69। अब इस तरीके देखिए ये हमारे क्रू मेंबर्स हैं सारे, जो हमारा शिप के अंदर का है, शिप में रहने की जगह है, बहुत स्मॉल, वी आर गिवन वेरी स्मॉल प्लेसेस है, क्योंकि जो हमको दिखाया थे ट्रेनिंग के टाइम में भाग रहे थे, वी आर गिवन वेरी स्मॉल प्लेस, एक टेंट में 4 आदमी को रहना होता है और ऊपर खड़े भी नहीं सकते, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती कि ताकि वहां जाके यू कैन नॉट फेस एनी हार्डशिप, इफ देयर सम हार्डशिप यू कैन टॉलरेट दैट। ये सब सिखा है, इधर छोटे छोटे में टायर सिस्टम में हम लोग ऊपर नीचे सोते थे इस शिप में। ये देखिए वी आर मूविंग नाउ, थीम आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। आफ्टर वियरिंग डबल ग्लास कैप, हैट एंड बिग क्लोथिंग, entire mustache and beard is frozen. Why? Because of the low temperature outside. When we breathe out air, when we exhale, जब अपनी बाहर हवा को सांस लेते नहीं लेते, once we take air inside, breathing क्या है? breathing, और once we take out air, exhale, बाहर निकालते हैं, breathing। तो whatever the, अब पूछा तो mustache सब वो ठंडा है ना, अंदर से गर्म मॉइस्चर जो आया, ये जो अंदर से हवा आती है, गैस निकलती, क्या है? मॉइस्चर फुल, दैट इज फुल ऑफ मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर होता है, टोटल मॉइस्चर इज फ्रोजन मॉस्टाच। अब इसको कौन नहीं भी नहीं काट सकता, हाउ टू क्लीन इट। अब ये पूरे हमारे ये हेलमेट, कैप्स, ये ऑल गॉगल्स आर टोटली स्टिफ्ड, ये चिपक जाते हैं। व्हेन यू कम बैक टू आवर स्टेशन, अगर किसी ने चश्मा खींच लिया तो आंख तुम्हारी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि चिपक जाती है ना। किसी ने आपकी टोपी उगाई तो बाहर रेस की तरह बाल भी निकाल लेगा बाहर तुम्हारा। अब मूछ तो निकालने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि चिपका रहता है। तो धीरे धीरे आपको गर्म में रखा जाता है, पिघलता है, फिर ठंडे गर्म पानी से किया जाए। तो दिस इज द कंडीशन इन अंटार्कटिका। भाई ये किसकी फिगर है? मेरी फोटो है, आइडेंटिफाई मी देयर। This is none other than me. अब आपने कहा मुझे तो नहीं, because there is no barber, no सलीम सैलून, no ब्यूटी पार्लर। आपको बाल बढ़ता चला जाएगा, आपको 4 महीने से रहना है, कोई सैलून नहीं है। तो हमारे एक साइंटिस्ट कभी कोई थोड़ा ट्रिम कर देते थे, डॉक्टर ये सर। नाउ दीज आर हेलीकॉप्टर्स विथ अस, इनको साथ हमको साइंटिस्ट आर गिवन विद द साइंटिस्ट 30 scientists, you have been given a good logistics support by Army, Air Force and Navy. Their job is to take me anywhere for sample collection, जहाँ भी जाना होगा। Air Force job is to transport all materials, हमारे पास तेल फिर जो, अच्छा मटेरियल्स उतरने के बाद में और दिखाएंगे, सैंपलिंग भी हम लोग जाते हैं इस तरीके से। ये बड़े काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। नाउ दिस इज दक्षिण गंगोत्री, established in 1983,
धीरे धीरे। एंड फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका वाज डॉक्टर एस.जेड. कासिम। नाम सुना है? 1981 में पहला एक्सपीडिशन हिंदुस्तान का गया था, और अभी 2021 में 40th आया, 40वां आया। आई वॉज इन 11th। And leader of first Antarctica expedition was Dr. Syed Jahur Qasim from Allahabad, of a village 25 kilometer just ahead from this place. यहाँ के रहने वाले थे, in the regime of Prime Minister. Now एक इस पे बना था हमने, उसमें दिखाया था अंटार्कटिका में, वो कॉन्टिनेंट से बाहर डॉट बनाएंगे। ये this station was 79 packed ice, and slowly it got सेगरेट, समुद्र के नीचे चला गया। सैयद कासिम, सैयद जहूर कासिम। और देख रहे हैं, अच्छा सेकंड देखिए, दिस इज सेकंड स्टेशन इरेक्टेड इन 1988 एंड 89। इसका नाम बहुत अच्छा दिया था। देखो, हम लोगों को वी फील फॉर्चुनेट इनफ एंड वी फील प्राउड इवन कि आवर नॉमेनक्लेचर इज रियली बेस्ड ऑन आवर बिहेवियर, नेशन, नेशनैलिटी इन द रीजन ऑफ पीएम। इसका नाम मैत्री दिया गया है। इसी ने मैत्री स्टेशन राइट में और लेफ्ट में यू सेप्ड है। इट इज स्लाइटली एलिवेटेड ऑन एंगल आइलैंड सो एज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ मेल्टिंग आइस। मेल्टिंग आप ये देख रहे हैं, कहाँ गया है थोड़ा ये दिखाने वाला पोर्शन। हाँ, ये जो नीचे से लाइन आ रही है, दीवार आ रही है, दिस इज नथिंग, ये पाइप आ रहा है। पाइप ऑफ द, हाँ दिखा, पाइप हम देखिए, पाइप ऑफ द स्टेशन इज कनेक्टेड टू ए लेक। ये देखिए स्टेशन का पाइप आ रहा है, लेक सामने, लेक जमी हुई थी, आधा आंख जैसे दिख रही है। दिस इज जुब लेक। नाउ आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ लेट मिसेज इंदिरा गांधी, दिस हैज बीन नेम्ड एज प्रियदर्शनी लेक। माइंड इट, क्वेश्चन है आपके मन, हम आपको बीच में बता रहे हैं कौन से क्वेश्चन बनते हैं आपको। नाउ इट वाज जुब लेक, नाउ इट हैज बीन रीनेम्ड एज प्रियदर्शनी लेक। और वाटर, इसमें वाटर सोर्स क्या है? दिस इज लेक, दिस इज नॉट ऑर्सेनिक वाटर, दिस इज वाटर मेल्टेड फ्रॉम योरसेल्फ, बर्फ से पिघला हुआ पानी। दिस सॉफ्ट वाटर, सॉफ्ट वाटर भी जम जाता है। समर में इट इज ओके, बट विंटर में इट इज कम्प्लीटली फ्रोजन एंड वी यूज टू प्ले फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, हम लोग इसमें दौड़ते खेलते, इतना पैक हो जाती है। फॉर टेकिंग वाटर फ्रॉम लेक टू स्टेशन, वहां तो कोई कुआं है नहीं, जल नगर में ऐसा संसार नहीं है। देर आर टू पाइप्स, ये जो दिखा रहे हैं, देर आर टू पाइप्स running parallel. From one pipe we send warm water in the lake to melt the water, to melt the snow, and from other pipe we set the water to take inside the sun. So the life is very tough. ये देखिए पूरा दिख रहा है आपको, lake is completely packed. And after मैत्री स्टेशन there are wooden huts. ये वुडन लकड़ी के घर बनाए गए हैं। आप देखिए रस्सी से बने हुए, दोनों तरफ रस्सियों से बोल्डर्स में बने हुए हैं। इस रस्सी में जो दिख रहे हैं आप ट्रायंगल देखिए, सी द ट्रायंगल ऐसे बोल रहे हैं, और उसके नीचे तो हमारी लैब होती है, स्टोर होता है। ट्रायंगल जिसमें खिड़की दिख रही है, ट्रायंगल में ही हमें सोना है। कैन यू स्लीप देयर? उसमें भी खिड़की की तरफ सिर और उधर पैर, एक उधर एक इधर, एक उधर एक इधर, ऐसे इसी में सोना है 6-6 आदमियों को। कैन यू स्लीप? इवन टू चेंज आवर क्लोथिंग, पूरा आप खड़े नहीं हो सकते, पूरा खड़े नहीं हो सकते। अपने पैंट पहनने के लिए बाथरूम जाना है, कहीं जाना है, तो ये होता है। दिस इज वुडन हट। नाउ थर्ड स्टेशन रिसेंटली established in 2012 in Larsman Hill. Larsman Hill का नाम पूछा, Larsman Hill known as Bharti. This station is Bharti. This is 3000 kilometer away from मैत्री स्टेशन। मैत्री से 3000 किलोमीटर ये दूर स्टेशन भारती। भारती का दूसरा सेकंड फिगर है भारती, लार्समैन हिल लिखा हुआ है। अब एज सुन एज वी रीच टू अंटार्कटिका, हमने शिप को इकट्ठा कर दिया,
हमारा पूरा हेलीकॉप्टर से भी ट्रांसपोर्ट ऑल मटेरियल फ्रॉम शिप टू अंटार्कटिका मैत्री में आ गया. एवरी मटेरियल इज केप्ट इन क्लोथिंग बॉक्स फूड मटेरियल केप्ट आउटसाइड. वहां पे कोई चोरी का डर नहीं, सड़ने का डर नहीं, गलने का डर. एवरीथिंग इज केप्ट आउटसाइड वहां पे. और इसमें सारा कुछ क्या है, एवरी पार्ट and every participant has to do equal work commonly, maybe colonel, maybe scientist, maybe सिपाही. अगर बैरल को ढोना है, 2 सिपाही साइंटिस्ट मिलकर ढोना होता है. उतारने के बाद तो मैनुअल हो जाएगा ना. दिस इज टोटली बाय मैकेनिकल सिस्टम. व्हेन वी गेट डाउन, हम सब इसको उतारते हैं मैनुअल पावर से, और खाली ड्रम को फिर इसमें चढ़ाते मैनुअली. हम लोग सब सर पे उठा के हम भी उठा लेते थे खाली डब्बा. ये सारा का सारा चीज देख लो, ऊपर सब ऐसे रखा, ओपन में रखा हुआ है. यहाँ ऐसा नहीं कि आप रख दीजिए और सब बाहर से कार खोल ले गए, सामान बाइक उठा ली. तो ये नाउ ये हमारे खन्ना साहब हमारे मित्र थे, ये हमको खूब घुमाते थे मेरठ में. यंग चैप सिपाही, इनको शौक, फौजियों को शौक बहुत होता फोटो खिंचवाने का. लेफ्ट साइड इज डॉक्टर, ये एम्स का डॉक्टर था. ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड, बिमल छाजर. आप इसके व्हाट्सएप पे खूब देखते होंगे, लिविंग स्टाइल बहुत अच्छा, एम्स में था, अभी खूब आता है, टीवी में खूब आता रहता है. बिमल छाजर, हिज जॉब वाज टू ट्रेन योगा टू पार्टिसिपेंट्स एंड चेक आवर इम्यूनिटी एंड रेसिस्टेंट. जो आजकल इम्यूनिटी रेसिस्टेंट होती नहीं पड़ रहा हो, yes, ये हम लोगों को योगा कराते थे और पानी का टेम्परेचर 0 कर देते थे, फिर -4 कर देते थे. सारे पार्टिसिपेंट पहले सब पे ले लिया, फर्स्ट डे ले लिया 0 पे, ठीक है, और 0 पे 1 हफ्ता योगा कर. ये मेजर साहब, राइट साइड में मेजर साहब थे, जिनके बाल बढ़ गए हैं. अब ये मेजर साहब ने क्या हुआ, इनको साइंटिस्ट बनना था, तो बेचारे मेजर से साइंटिस्ट की तरफ, इनको इंजीनियर थे. हमारा जनरल वाई, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, वाई आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी. जॉब ऑफ नेवी इज टू सपोर्ट अस फॉर कुकिंग, ऑल व्हाट नॉट, हर तरह की कुकिंग करना, एंड ट्रांसपोर्ट अस फॉर कलेक्शन ऑफ सैंपल्स आर गोइंग एनीवेयर बाय देयर टू स्मॉल हेलीकॉप्टर. And job of Air Force is to only transport all materials, big material from ship to Maitri station. And job of Army is to give mechanical support, electrical, उनमें कुछ जनाना, उनको कनेक्शन देना है, बनाना. This is their job. सबकी जॉब अलग. For scientists, all are logistic. You see, क्या है सामने? When we went out for collection, we found the naked rock. It was covered by snow. But during summer, we went in summer, the rock was, ice was melted. We Indian, how can I stop ourselves? Immediately we gave this शिवलिंग. तुरंत nomenclature नामकरण हम लोग करे शिवलिंग. तो अभी now it is known as शिवलिंग. लग भी रहा है शिवलिंग की तरह. तो हमें, हम लोगों को तो इंटरेस्ट भी है. एनीवे, ये फाउना पे मत चाहिए, छोड़िए, ये सब छोड़िए. थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, तो यहाँ से फिर इंटरेस्टिंग चीजें बताई जाएगी आपको. क्यों क्वेश्चन? या अभी नहीं होता तो कल भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि सब खिचड़ी बन जाए दिमाग में. यस सर, ये 9 से 10:30 का अगर रखा जाए डेली तो ठीक है. ठीक है. हाँ देखिए, क्लास हो जाती है. व्हाट आई वांट कि एक ही चीज डेली मत खाओ, एक ही चीज मत सुनो डेली. कितना टाइम हो गया बेटा? आई थिंक